हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोर्ड बूस्टर। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। और ये हम काफ़ी पढ़ लेते और ये आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रियो दे जेनेरियो आर्ट समिट 1992। In June 1992, more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil. For the first International Earth Summit, the summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity. The Rio Convention enrolled the Global Forest Principle and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in 21st century. ये सिर्फ पढ़ना है ये वाला। ये वाला पढ़ ले तो हो जाएगा। सिंपली रीड। Resource planning. Planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources. It is important in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources, but are deficient in some other resources. रिसोर्सेस प्लानिंग बहुत ही एक्सेप्टेड है स्ट्रेटेजी फॉर ऑल, मतलब जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इंडिया हो गया, तो ये डाइवर्सिटी में अवेलेबिलिटी होता है जो रिसोर्सेस। देयर आर रीजन विच आर रिच इन सर्टन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। यहाँ पर जो रीच होते हैं उनके लिए एक सर्टेन टाइप के रिसोर्सेज होता है, लेकिन कुछ अलग लोग के लिए सम अदर को के लिए डेफिशिएंट रिसोर्सेज होता है। देयर आर सम रीजन विच कैन बी कंसिडर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. For example, जैसे कि स्टेट्स हो गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आर रिच इन मिनरल एंड कोल डिपॉजिट। यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और कोल होते हैं। और अरुणाचल प्रदेश हैज़ abundance of water resource but lacks in infrastructure development। यहाँ पर बहुत सारे अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स के लिए है, लेकिन अभी तक उतना ये स्ट्रक्चर नहीं हो पाया है। और राजस्थान जैसे को हो गया, राजस्थान में कौन से रिसोर्सेस है? वहाँ पर विंड एंड सोलर एनर्जी होता है। वाटर नहीं है, लेकिन विंड एंड सोलर एनर्जी तो है। द cold desert Ladakh is respectively isolated from the rest of country. It has very rich cultural heritage, but it is deficient in water, in structure, and some vital minerals. This calls for balanced resource planning at the national, state, regional, and local level. रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या रिसोर्स प्लान किया गया है वो अब पढ़ेंगे। रिसोर्स प्लानिंग इज अ complex process in which involves
identification and inventory of resources across the region of the country. This involves surveying, mapping, and quality, qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources. जो हमारी इंडिया रिसोर्स प्लानिंग है उसमें क्या इन्वॉल्व्स है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन है और इन्वेंटरी होता है रिसोर्सेस में जो कि हमारे कंट्री रीजन में है। और यहाँ पर सर्वेइंग, मैपिंग, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एस्टिमेशन की मेजरमेंट भी होता है रिसोर्सेस में। इन्वॉल्विंग a planning structure, a node with appropriate technology, skill, and institutional setup for implementing resources development plans। यहाँ पर कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। इंस्टीट्यूशनल जैसे कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। और ये सारे रिसोर्स डेवलपमेंट किससे मैच करता है कि नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ। इंडिया हैज़ मेड कंसंट्रेट एफर्ट फॉर अचीविंग द गोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 year प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। The availability of resource is a necessary condition for the development of any region, but mere availability of resource in the absence of corresponding change in technology and institution may hinder development. There are many reasons in our country that rich in resources, but these are included in economically backward region. On the contrary, there are some regions which have poor base, but they are economically developed. Can you name some resource rich but economically backward region and some resources poor but economically developed region? Give reason for such situation। ये आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया कि एक रिसोर्स बताओ जो कि बहुत सारे रिच है लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, और कुछ ऐसे रिसोर्स बताओ जो बहुत ही पोर है लेकिन इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। इसका भी आंसर हम करेंगे लेकिन क्वेश्चन आंसर की वीडियो में करेंगे, अभी नहीं करना। The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders. It was primarily at the higher level of technological development of the colonizing country that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technology development and institutional changes. India has experienced all this in different facets of colonization. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resource, and the historical experience of the people। हाँ, ज्योग्राफी क्या है कि हमें ना सिर्फ एक बार सिंपली
रीड कर लेंगे ना चैप्टर को तो भी समझ में आ जाता है। और इसमें वैसा भी कुछ हार्ड वर्ड तो है नहीं, तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। शायद और एक वीडियो भी हो सकता है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि इसी वीडियो में कंप्लीट कर लूँ इसे। Conservation of resources. Resources are vital for any developmental activity, but irrational consumption and overutilization of resources may lead to psychoeconomic and environmental problems. To overcome these problems, resource conservation at various levels is important. This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. For example, Gandhiji was very accept in voicing his concern about resource conservation in this world. There is a no for everybody need and not for anybody's greed. He placed the greedy and selfish individual and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. He was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. ये गांधी जी ने कुछ बताए थे कि उनका कंसर्न था क्या रिसोर्स के बारे में। ये बहुत ही नो है कि एवरीबॉडी के लिए, लेकिन इसे कोई भी ग्रीड नहीं करती। और ये जो ग्रेडी सेल्फिश लोग हैं ना, उनके लिए इंडिविजुअल एक्सप्लोटिव नेचर के मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी बहुत ही कम डिप्लेशन करती है ग्लोबल लेवल में। तो यही बताया गया था। और हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेस। वी लिव ऑन लैंड। ऑब्वियसली हम सब लैंड में ही रहते हैं, धरती पर ही रहते हैं। और धरती पर मतलब आप क्या सोच रहे हो, प्लैनेट के बारे में बता रही हूँ? नहीं, लैंड मिट्टी, जहाँ पर आप चलते हो खेलते हो। हाँ, आपकी घर भी वही लैंड पर ही तो हुआ है। We perform our economic activities on land and we use it in different ways. कि हम बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लैंड पर ही परफॉर्म करते हैं और इसका बहुत सारे यूजेस भी है। Thus land is a natural resource of utmost importance. ये जो लैंड है ये एक नेचुरल रिसोर्स है और बहुत इम्पोर्टेंट है। It support natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system. हाँ, कि ये ना नेचुरल वेजिटेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स के लिए, ह्यूमन लाइफ मतलब हम ह्यूमन बींग्स के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर लैंड नहीं होती ना तो हम कैसे रहते? तो इसीलिए लैंड बहुत ही यूज़फुल है। इसमें हाँ, ये एक नेचुरल रिसोर्स है और इसमें हम बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि हमें बहुत यूज़ आता है। However, land is an asset of finite magnitude. Therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful planning. कि जो लैंड है इसमें बहुत फिनाइट मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है और अवेलेबल लैंड में हम वेरियस पर्पज़ की केयरफुल प्लानिंग भी कर सकते हैं। जो भी हमारे पास लैंड है हम उसमें बहुत सारे प्लान करके कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यूज़। इंडिया हैज़ लैंड अंडर a variety of relief feature, namely mountain, plateau, plains and island.
इंडिया में बहुत सारे रिलीफ वैरायटी उनका नाम है, एक है माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू और आइलैंड। ठीक है। About 43% of land area is plain, which provide facilities for agriculture and industry. लगभग 43%। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। अरे वो क्यों नहीं रहा, कलर चेंज ही नहीं हो रहा। अरे पता नहीं क्यों ये कलर क्यों चेंज नहीं हो रहा। मुझे ये वाला कलर चाहिए ताकि आप लोग को समझा सकूँ, लेकिन नहीं। ओके, लीव इट, जो भी कलर है उससे कर लेते हैं। जो 43% इसमें क्या है, प्लेन्स है। ये ब्लू वाला पार्ट आप देख सकते हैं। क्या हो रहा है यार। हाँ ये वाला थोड़ा इससे, ये 43% जो ये ब्लू पार्ट्स है, ये वाला देख सकते हो, ये प्लेन्स है। और 30% क्या है, माउंटेन्स है। इसमें वो कलर ही नहीं है, इसलिए हम इसे रेड कलर में देख लेते हैं। ये वाला क्या है, माउंटेन्स है, जो कि पर्पल कलर का है। और 27% प्लेट्यूज है, ये येलो वाला। मैं इसे समझाने के लिए ऐसे कर ली, लेकिन अच्छा नहीं हुआ, कोई नहीं। हाँ, इसमें क्या है, 43% प्लेन है, जो मैं ये ब्लू कलर की हूँ। और 30% माउंटेन्स है, और 27% प्लेट्यूज है। About 27% of area of the country is plateau region is possesses rivers, minerals, fossil fuels, forest। तो प्लेट्यूज में हमें क्या मिलता है कि बहुत सारे मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट, ये सब हमें यहाँ पर मिलता है। जो रिसोर्सेस क्या है, नॉन रिसाइकेबल है। कभी भी हम उसे एक बार ना यूज, जैसे मैं बताया नहीं ना, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल डीजल को हम अगर एक बार यूज़ कर लिया होता है, दोबारा हम उसे नहीं कर सकते ना, वही सब। ये बहुत गंदा दिख रहा है, यूज इरेज कर लेते हैं। अरे यार, इरेजर अच्छा लगा। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्स आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस, फॉरेस्ट लैंड रिसोर्स में क्या क्या है, हम देखो, फॉरेस्ट है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बरेन एंड वेस्ट लैंड। बरेन एंड वेस्ट लैंड होता है जो कल्टीवेशन के लिए नहीं होता है अवेलेबल। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, जैसे कि बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा।